So welcome dear students. Today we are going to start the new chapter, that is linear programming problem. So there are basically two subsections of this chapter. That means linear programming problem has been divided into two subsections, linear programming problem 1 and problem 2. Out of that, problem 1 consists of introduction of linear programming problem. After introduction, we will look after the various types of the linear programming problem, and after that we will start with graphical method, simplex method, two-phase simplex method, revised simplex method, etc, etc, and then we will move or shift our focus to new unit, that means new chapter. अब इतना हो गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा, and let us discuss about this linear programming problem. Basically, what is this linear programming problem? Take out of that, here today what we are going to see, this is more important. We will introduce linear programming problem first of all. What are the standard definitions of linear programming problem that we will see, the requirements, the assumptions, applications, particularly the standard format of linear programming problem, and the advantages with limitations. These are the factors that we will look into. Let us hope that we will continue all those things. Okay, so moving forward, the thing which has been constructed with linear programming problem that we will look into. What is linear? Linear means basically it is a line, it is related with the line. So linear means it is related with the line. This is the first thing that we will have to look into. Second, programming is concerned with the optimal allocation of allocated resources. What is programming? Programming is concerned with optimum allocation. Allocation means what? Allocation means distribution of allocated resources. जो resources आपके पास आए हैं, वो resources का proper way से हमें क्या करना है, distribution करना है. This is the way that we are going to see in the programming. Now, what is linear programming? So linear programming is the way to handle certain types of optimization problem to achieve best outcome. यानी linear programming में हमें best outcome ढूंढना है, और उस best outcome ढूंढने के लिए जो भी चीज़ें लगती है वो चीज़ हम identify करने का क्या करेंगे, try करेंगे linear programming में. So this is the fact. Understood? So I am moving forward. What is the definition of linear programming? This is the rough definition. That means what we are talking about, it is a rough definition that we will look into. See carefully. So what definition gives me? The definition suggests me that linear programming is a mathematical modeling technique. It is a mathematical modeling technique useful for allocation of the limited resources. What kind of limited resources? Limited resources consist of labor, material, machine, time, etc, etc, whatever it may be. ठीक है, to several competing activities. What are those competing activities? Product, labor, product, material, service, time, job, machine, new equipment, projects, etc, etc. Are you understanding this? That means I am just trying to define the correlation between these. ठीक है, on the basis of given criteria of optimality. And the given criteria of optimality has been provided to you, and you have to design all those things depending upon that. Is it clear? अब ये तो समझ में आ गया, ठीक है. Now we will move once again. What is linear programming problem? It is an optimization method applicable for the solution of problems in which the objective function and the constraints appear as a linear functions, and the constraints appear as a linear functions of decision variables particularly. So see carefully what it is. It has been defined in a proper manner. ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखना क्या है वो. Linear programming problem is an optimization method. Basically linear programming problem क्या करता है, optimization करता है. किसका optimization? वो करता है optimization which is applicable for the solution of problems, particularly किसका, जिसमें objective functions involved हो,
जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शंस इन्वॉल्व हो, जिसमें कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व हो। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स क्या? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला आइडिया हम पहले ही देख चुके हैं। कहाँ पर? पहले यूनिट में, जहाँ पर हमें जिसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ करता था। अंडरस्टूड? अब वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखने के बाद उसके साथ में जिसके बेसिस पे मुझे वो उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है वो होता था हमारा क्या? कंस्ट्रेंट। अब हुआ क्या कि ये कंस्ट्रेंट या ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट्सेट्रा 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 ये सभी चीज़ें ये जब लीनियर फॉर्मेट में आएगी, सी केयरफुली मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जब लीनियर फॉर्मेट में आएगी तब इन सब स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब द थिंग इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस जो हमने देखा है और अब हमने देखा है, उसमें क्या डिफरेंस है? द थिंग इज दैट कि हियर कंस्टेंट इक्वेशन इन एलपीपी मे बी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेलिटीज एंड इनइक्वेलिटीज। द थिंग इज दैट कि यहाँ पर जो कंस्टेंट इक्वेशन है, प्रीवियस इसमें जो देखा था वो कंस्टेंट इक्वेशन और यहाँ पर कंस्टेंट इक्वेशन, द डिफरेंस इज दैट कि इट मे बी ये लीनियर भी हो इक्वालिटी भी हो सकता है या इनइक्वालिटी में भी हो सकता है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो दिस इज द केस। अब हमें इसको कैसा डिफाइन करना है, ध्यान से देखना। ठीक, वो इक्वालिटी भी होगा, वो इनइक्वालिटी भी होगा, वॉट एवर इट में भी, इतना याद रखना वो। ठीक, मैं जब भी चीज़ें आएंगी उसको मैं बोलूँगा आपके सामने। व्हाट आर द, अब ये डेफिनेशन होने के बाद अब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, वो रिक्वायरमेंट भी देख लेंगे। सो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट? कि देयर शुड बी अ प्रॉपर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। प्रॉपर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस शुड बी द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। What is the second requirement? The second requirement is that there must be an constraint on the amount, यानी constraint होनी चाहिए। ठीक है। Third, the decision variables should be interrelated and non-negative। जो भी decision variables है वो interrelated होने चाहिए और non-negative होने चाहिए। The resources must be limited in supply। अब रिसोर्सेस मस्ट बी इन लिमिटेड इन सप्लाई, इसका मतलब क्या? रिसोर्सेस लिमिटेड इन सप्लाई इसका मतलब ये बनता है कि ही अनलिमिटेड रिसोर्सेस अगर हो तो एलपीपी में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कंपस समझाएगा। ठीक है, तो वो लिमिटेड होना चाहिए, इतना याद रखना। ठीक, अब इतना हो गया हो तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अजम्पशंस, अजम्पशंस क्या? जो रिक्वायरमेंट्स है उसी के बेसिस पे कुछ अजम्पशंस है। इंटर रिलेटेड प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। किसका कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी होना चाहिए रिसोर्सेस का, कंटिन्यूटी होना चाहिए वेरिएबल्स का। अंडरस्टूड? सर्टेनिटी होनी चाहिए। किसकी सर्टेनिटी होनी चाहिए? आंसर सर्टन चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अननेसेसरी, नॉट नेसेसरी वाली कोई चीज़ नहीं चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं चाहिए। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हो गया। अब नंबर 4, फाइनाइट चॉइसेस। व्हाट आर फाइनाइट चॉइसेस? चॉइसेस फाइनाइट मतलब मेरे सामने जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो फाइनाइट चाहिए। इनफाइनाइट प्रॉब्लम के लिए मैं उसको डील नहीं कर सकता। अगर वो इनफाइनाइट हो तो वो प्रॉब्लम और कम्बरसम हो जाएगा, मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको सॉल्व करना या देखना उसको या उसको एनालाइज करना। अंडरस्टैंड? ये भी याद रखना। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस। अब ये एप्लीकेशंस क्या है? ध्यान से देखो एप्लीकेशंस क्या है। पहला, इसका एप्लीकेशन सबसे पहले बिजनेस में होगा। ये बिजनेस में एप्लीकेशन कैसा? देखो बच्चों, बिजनेस में यह नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमें आ सकते हैं जहाँ पर हमें एलपीपी का यूज़ करना पड़े। तो बिजनेस में एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, मिलिट्री एप्लीकेशन है। मिलिट्री एप्लीकेशन कैसा? इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको कहाँ पर दूंगा? इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा सिंप्लेक्स मेथड में। तब मैं इसको क्लियर करूँगा कि बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट ही मिलिट्री ऑपरेशन के लिए थी। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स तो फंडामेंटल रोल है उसका। इकोनॉमिक्स में मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
यहाँ पर बेसिक आइडियाज़ है जहाँ पर ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन है इसके। अंडरस्टूड? ठीक है। हाउ द थिंग इज दैट कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलपीपी। ये आपको थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा होगा बच्चों, फिर भी थोड़ा सा लुक कीजिए इसको। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक है, दैट मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z equal to c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 dot 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 cn xn subject to the set of linear equations. What are those linear equations बच्चों? Those linear equations are a11 x1 plus a12 x2 plus dot 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 a1n xn. See here carefully. These are the constraints, and constraints can be equality or inequality. This has already been mentioned. So the structure has been written as less than or equal to or greater than or equal to b1. Similarly, the same formula has been constructed, and the construction has been made in such a way that the second equation can be terminated as a21 x1 a22 x2 a23 x3 dot 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 a2n xn. Same concept, less than or equal to or greater than or equal to the b2. Similarly, dot 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 am1 x1 am2 x2 dot 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 amn xn. Same, less than or equal to or greater than or equal to, less than or equal to or greater than or equal to bm, where x1 x2 x3 greater than or equal to 0. So याद रखना, इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी। क्या कहते हैं इसको? कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट, जो मैंने कही थी ये बात, मैं थोड़ा सा और एक बार प्रीवियस जाऊँ तो आपको अंडरस्टैंड होगा। मैं इसको रिपीट करूँगा। थर्ड नंबर का पॉइंट देखना, द डिसीजन वेरिएबल्स शुड बी इंटर रिलेटेड एंड नॉन नेगेटिव। So x1 x2 x3 are the decision variables. These are interrelated and these are non-negative. So what this is particularly, अब ज़रा इसको उल्टा देखोगे तो और ध्यान से देखना। इसको ये देखो कि इसमें से a11 जो है ये है कोएफिशिएंट्स, x1 x2 x3 xn ये है डिसीजन वेरिएबल्स। उसके साथ b1 b2 b3 bm ये कॉन्स्टेंट्स हैं, जिसकी वैल्यूज़ हमें क्या करनी है, जिसको सॉल्व करके वैल्यूज़ हम क्या करने वाले हैं, आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो अब इन सब स्ट्रक्चर्स को मैं कैसे डिफाइन करूं? इन सब स्ट्रक्चर्स को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? ज़रा ध्यान से देखना। c1 c2 cn को मैं c कहता हूं, रो मैट्रिक्स c। x1 x2 x3 को मैं कॉलम मैट्रिक्स x कहता हूं। a11 a12 a13 डॉट 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 इनको मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल A कह सकता हूँ। b1 b2 b3 को मैं कॉलम मैट्रिक्स B कह सकता हूँ। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो दिस कैन बी टर्म्ड एज z इक्वल टू cx। दिस कैन बी टर्म्ड एज z इक्वल टू cx प्रोवाइडेड दैट ax लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू b। ax less than or equal to, greater than or equal to, or equal to b. Is it clear? So this is called as the general structure of linear programming problem. इसमें एक बात और याद रखना बच्चों, इसमें एक बात और याद रखना, अगर सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो वो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल है उसमें C11 का कैपिटल C और कैपिटल X का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा। AX का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको बॉडी मिलेगी, किसकी बॉडी मिलेगी? आपको कंस्ट्रेंट्स की। और RHS के लिए तो B एज इट इज़ है। तो बच्चों इसको स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कहाँ पर देखा है ये भी मैं बता सकता हूँ। ये आपने देखा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में।
समझ में आया? यही चीज़ आपने देखी है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में, और वहीं पर हमने इसको ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब यहाँ होने के बाद आई एम मूविंग फॉरवर्ड वंस अगेन। अब व्हाट आर द थिंग्स, यानी अब हमारे लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं दैट कैन बी टर्म्ड एज एडवांटेजेस ऑफ एलपीपी एंड डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस ऑफ एलपीपी। एलपीपी में हम जो चीज़ यूसेज है हमारे उसका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, और प्रोडक्टिव फैक्टर्स का पर्टिकुलरली इसमें ये यूज़ करने के बाद जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है, दैट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी गेट्स इन्हांस्ड, बढ़ती है। ये बदलते कंडीशंस के हिसाब से टूल सेटअप करने के लिए भी बहुत काम में आता है। ये प्रॉब्लम्स वाइज हम जब इसको देखेंगे तब मैं इसको और बेहतर तरीके से क्या कर पाऊँगा, आपके सामने ध्यान से दे पाऊँगा इसको। अब लिमिटेशंस क्या है ये भी एक बार विजन कर लें। लार्ज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम में हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं जहाँ पर डाटा बहुत बड़ा हो। कभी कभी फ्रैक्शनल आंसर्स भी मिल सकते हैं, समझे? यानी मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए प्रोडक्शन की नॉर्मल नंबर में, या पर्टिकुलर मैं कहूँ इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में, और वो अगर आ गया फ्रैक्शन, ठीक है, वो अगर आ गया फ्रैक्शन तो मैं अड़चन में आ सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये आ सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक सिचुएशन, डायनामिक सिचुएशन में प्रॉब्लम आएगा, अंडरस्टूड। एंड एलपी डील्स विथ, पर्टिकुलरली लास्ट वाला सेक्शन, एलपी डील्स विथ किसके साथ डील करेगा? सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ ही वो डील करेगा। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मल्टीपल वेरिएशंस, मल्टीपल प्रॉब्लम, यहाँ पर वो थोड़ा सा क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। सो ये बातें याद रखिए। और यहाँ पर मैं इसका इंट्रोडक्शन बच्चों फिनिश कर रहा हूँ। आज हमने जो देखने का ट्राई किया था वो सब हम यहाँ पर कवर कर दिया हमने। अब इसके आगे हम दो सेक्शंस देखेंगे। नंबर 1, पहला सेक्शन होता है यहाँ पर ग्राफिकल मेथड, और दूसरा सेक्शन होगा हमारा कौन सा, ग्राफिकल मेथड पहला सेक्शन होगा, और दूसरा सेक्शन होगा हमारा कौन सा देखें, उसके बाद हम देखेंगे सिंप्लेक्स मेथड। इज इट क्लियर? तो ग्राफिकल मेथड पहले देखेंगे और बाद में क्या देखेंगे, सिंप्लेक्स मेथड देखेंगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।